हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज हम कर रहे हैं ओली बोर्ड का एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का सेकंड वाला एग्जाम मॉक टेस्ट देंगे आज प्रीलिम्स 2। तो देखते हैं कितना स्कोर रहता है और रफ वर्क में लगा दूंगा रीजनिंग का जैसे पहले लगाया था मैंने। इससे पहले मैंने एसबीआई क्लर्क की वीडियो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट की डाली थी, तो ज़रूर देखें वो जाके। उसमें मेरा 95.5 परसेंटाइल आया था। तो आज देखते कितना रहता है। ओली बोर्ड का लेवल टीवी से तो बेटर रहता है। तो लेट्स सी कितना स्कोर रहता है। जितना भी रहेगा मैं डाल दूंगा। एंड आप बताना आपकी कैसी चल रही है तैयारी। और सेकंड मॉक टेस्ट के अंदर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2025 2 के अंदर कितने मार्क्स आए हैं आपके, तो वो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स गो। ठीक है, इसमें क्या बताना है? Replace the phrase. ठीक है, the police department sounded an alert after gets information from center. After getting sounded and alerted a sound after getting information from ही होएगा sounded an alarm. Sounded an alert after getting information. The committee dash sat in the center dash while addressing the meeting. Okay. Sat the committee convener sat in the center space. The committee space. Set in the center space, center head, center chair. The committee chair sat in the center chair. चेयर लग रहा है। कन्वेनर, कमिटी कन्वेनर। While my parents went to see the dash, I decided to stay back at home and dash with the dog. And to see, while my parents went to see the exhibition play, he traveled 100 meters in no direction, then turned towards his dash and arrived dash at front of my house. Uh, right, arrived right at. He tried to drive away the dash using the baseball and dash, but it did not leave the place. He tried to drive away the bat using the baseball bat, but it did not leave the place. Bat ही होएगा. The dash flew above the construction. Hmm. The crane flew. Construction crane. ठीक है. ठीक है, ये क्या है? the error if any part of sentence choose the option contain error बताना है. Patient after visiting the therapist was feeling extremely light. The patient after visiting therapist was feeling extremely light-hearted and happy, and she said that she felt that she felt she was relieved of all her stress, anxiety, and joy. इतनी बार she क्यों आएगा? She said that she felt relieved of all her stress. डी आएगा आई थिंक। दो दो बार शी ही आना चाहिए। शी फेल्ट रिलीव्ड। नेवर हैव मैथमेटिक्स बीन मोर इम्पोर्टेंट। एक सेकेंड। नेवर हैव मैथमेटिक्स बीन इम्पोर्टेंट मोर इम्पोर्टेंट लाइक अ स्किल देन टुडे। मोर इम्पोर्टेंट लाइक अ स्किल देन टुडे
like a skill than today, and the future and the way the future looks. Mathematics, coding, and data sciences will be the go-to skills in the future. You see, never have mathematics been have कैसे होगा never has mathematics यही होगा गलत. The melody of the song sounded strangely familiar. ये तो familiar ही गलत है. It's important to separate recyclables from regular trash to promote. तो separate में आता है, I think separate थोड़ी होता है, यही होएगा. Pollution in the city has reached acceptable. टिबल नहीं होता, acceptable होता है, ये आता है. The manager does so much work in the office that she is indispensable to the productive running. She is indispensable to the productive running of the manager does so much work in the office. Indispensable. तो ये तो सही लग रहा है यार, इंडिस्पेंस. All are correct. Radhika confessed that it was she who disclosed. It was her who disclosed. It was her. एक second. It was her who disclosed. It was her who disclosed the company's secret. It was she होएगा. It was she who revealed the. He had finished his assignment before the deadline. He had finished his assessment before he had finished. He had finished. No sooner I got into the house than the phone rang. No sooner के साथ तो then ही आता है. No sooner I got in the house. I got into the house then the phone rang. Got into the house then. सही लग रहा है, मतलब no error लग रहा है. The teacher made the boys stand in a line. To stand क्यों होगा? Made the boys to stand in a line and walk towards the gate. Made the boys stand in a line. भी होगा. Flow का meaning है. Our determination is that digital ordering has become a habit, and for in turn consumers now flow toward remote direct from restaurant ordering more so that than before the pandemic onset. So flow. तो now shift होएगा. अच्छा, देख लेते हैं ये भी क्या है. Consumers of new tactics. ठीक है. Another diet that is to want to is that alcohol, lot of alcohol sales which were up overall but way down for bars and restaurants. एक सेकंड बचा. Consumer new tacky skills and able to enjoy restaurant cooked meals whenever possible. Data collected pointed out that trends to containers patrons into dining in facilities. Our one determination is that digital ordering will become a habit, and 4 in 10 consumers now shift toward more direct from restaurant ordering channel more so than before the pandemic's onset. With these channels including ordering by phone call from the restaurant's website or tab, another 1 in 4 consumers
say they order delivery through restaurant aggregators more than before COVID zones. Another dash that's expected to continue is that of alcohol sales, up which were up overall but way down for bars and restaurants. Another ट्रेंड होएगा ना. Why Chowdhury for me explain why Google options differ from those of others. Okay. The story said that those who have increased their algorithm during the last year for the most part continue to see its older demographic that shows is most eager to return to on-site dining with 68% of baby boomers and seniors and 50% Generation X consumers indicating a desire to dine out more of CNG consumer. चलो तो घर पे ही खाते हैं. This the disparity it said could in part be due to the fact younger consumers had been taking more advantage of low contact options for restaurant cooked meals. But these self taking more advantage of low contact options. Prefer dine out as they restaurant food prefer low contact options ये होएगा. Paving a similar but these self are twice as likely as being to use mobile. Millennials are twice as likely as baby boomers to use mobile order ahead option for more than 4 times as likely baby boomers to use restaurant aggregators for delivery. That there is an across-the-board demand to return to restaurants for on-site dining, with more than 50% of sit-down service customers saying they intend to go to earn about their normal pre-COVID levels. The combination of pent-up demand for indoor dining and of the stickiness of digital ordering habit leaves restaurants with a season consumer shifting desires to increase sales both. ठीक है, another so those who do their during the last year for the most part of the industry, it's the older demographic that shows is most eager to run on-site dining. 68% of baby boomers and seniors, 56% of that generation X consumers indicating desire to dine out more often compared to only 41 millennials. This parity it could get be part of the fact. How can restaurant increase their sales in post-COVID world? Uh, यही होएगा. Parity it say could be ठीक है. The upshot is that there is an across the board demand to return to restaurants for on-site dining, with more than 50% of sit-down service customers surveyed saying they intend to go back to dining out at their normal pre-COVID level. A combination of pent-up demand for indoor dining to the stickiness of digital ordering habits leads us to be the value to season for shifting desire to increase sales for both on and off. ठीक है भाई, कौन सा कौन से नहीं एम्प्लॉइंग माउंटेन नहीं तो यही होएगा. ठीक है. तो which of the following gives the same meaning to the word upshot? So it is that there is the crux हो सकता है. The upshot is that there is an across the board demand. Fact the discussion the benefit भी हो सकता है. crux कर देते हैं. Why did consumers embrace newer technology skills and dining routines? Should always become habit and foreign to new techy skills and dining routines to enjoy restaurant cooked meals whenever possible. Data collected on the trend of like and whenever possible. It's a good habit to incorporate for them to adapt to these. Apps are easy to use and provide answers. It saves time and effort when compared to restaurant dining to save at any point of time. यही होएगा.
Which of the following exemplifies the disparity mentioned in the passage? Now, alcohol sales among older demographics have increased while for the they have remained the same. नहीं, Gen Z are less inclined to dine out as compared to Gen X. ये सही है. Gen X are more likely to go and dine when compared to younger Gen take more advantage of alcohol sales, according now flow toward rum. Disparity तो ये भी हो सकता. Disparity तो वही है ना पर. Which of the following is not a food ordering channel as mentioned? ठीक है. Set with the channel coding. 4 in 10 consumer flow toward direct from restaurant ordering channel more so than before the pandemic. With the channel including ordering by phone call from restaurant to its app. Direct phone call to the restaurant activated restaurant app. ठीक है restaurant. There 1 in 4 will say that they order through restaurant aggregators website of the restaurant blog. ठीक है तो ये क्या है which of the following statement is true regard millennials are the ones who are eagerly waiting to return to site and are more likely to choose low content options for restaurant food meals than millennials. Millennials तो पहले के हुए ना. एक सेकेंड. Sorry, the story that says the increase I put during last because it's the older demographic that shows most eager to return on the ones who will मिलीनियल्स पुराने हैं तो फर्स्ट तो सही है बेबी बूमर्स 68% ऑफ बेबी बूमर्स एंड सीनियर्स. अच्छा बेबी बूमर्स आर मोर लाइकली टू. नहीं बेबी बूमर्स तो सेकंड तो गलत है. ठीक है पर these elbow millions are twice as likely as baby boomers to use. Millennials are twice as likely as baby boomers to use mobile order add option for off-premise dining and more than 4 times as likely baby boomers to use delivery. तो मिलीनियल्स अभी वाले हैं ना दिस वेरी कोडेड विद ऑर्डनरी एनिमल कंट्री but these become twice as likely as to use more than 4 times. ठीक है तो मिलीनियल्स आ तो नहीं मिली फर्स्ट गलत है. बेबी बूमर्स चूज लो कॉन्टैक्ट ऑप्शन ये भी गलत है. अल्कोहल इंक्रीज ड्यूरिंग पैंडेमिक माइट नॉट इंक्रीज इन फ्यूचर. एक सेकंड सॉरी एक सेकंड कहाँ है द स्टोरी सेड दैट दोस फर्स्ट एंड सेकंड तो गलत है ओनली 3 होएगा फिर तो और तो कुछ हो ही नहीं सकता. कहाँ है अल्कोहल का. ये क्या है फर्स्ट द अदर मटेरियल्स आर टू zip zap elastic and eyes and so you might also want winter gloves at all to use later on. You will also need some other materials to turn. तो ए बी सी में से तो कुछ नहीं हो सकता. डी और ई फर्स्ट गैदर मिल्क शुगर एंड वनीला एज द इंग्रेडिएंट. डिड यू नो यू कैन मेक योर ओन आइसक्रीम एट होम. ई से स्टार्ट होएगा. फर्स्ट गैदर मिल्क शुगर वनीला एज द इंग्रेडिएंट्स. डी होगा. फिफ्थ रुक जाओ पहले डी सॉरी ई डी सेकंड देख लेते हैं सेकंड कहाँ है. First gather you will also need some materials to turn those into ice cream. First gather milk sugar as ingredients. You might also want to as to use. ठीक है तो फर्स्ट ये हो जाएगा. थर्ड मिल्क शुगर हो गया turn those into ice cream. ठीक है तो सी होएगा थर्ड.
ठीक है। और फिफ्थ तो किया ही नहीं मैंने अभी, फिफ्थ हटाओ ना। फिफ्थ, हाँ फिफ्थ क्या है, फिफ्थ अभी देखते हैं, रुक जाओ। यू माइट ऑल्सो want you will also need some other to turn those into the other materials. आर टू ए, नहीं ये तो डी बी होएगा, फिफ्थ तो बी होएगा और फोर्थ ए होएगा। ये ठीक था आई थिंक, हो गया। देखते हैं अब, कमिटी चेयर सेट इन द सेंटर, एंटर चेयर। देखते हैं कैसा रहता है। इंग्लिश तो हो गया है, नेक्स्ट सेक्शन कर देते हैं ना, आ जाओ। कंटिन्यू टेस्ट, ठीक है। ये क्या है, डबल प्लस दो, डबल प्लस चार इंटू टू प्लस चार इंटू टू माइनस दो हो गया ना ये तो। इंटू टू प्लस माइनस दो हो गया ये। यहाँ तो इसमें ही माइनस दो होना था क्या, नहीं 56 होना चाहिए। इसमें तो प्लस हो रहा है, प्लस चार हो रहा है, इसमें प्लस दो हो रहा है। प्लस छः नहीं होना चाहिए, इंटू दो प्लस 256, तो 262 हो जाएगा फिर। और उस वो फिर वो भी नहीं बनेगा, 510। इंटू टू प्लस टू ही है ये, फिर इंटू टू प्लस टू ही है, अच्छा। तो 128 है, तो ये नहीं होगा, 126 होएगा। ठीक है, तो 128 होएगा इंटू टू प्लस टू। ये क्या है, फर्स्ट वाला क्या था, अच्छा ये था फर्स्ट वाला, ठीक है। ये क्या है, इंटू चार माइनस चार इंटू, कितने का गैप है ये, 64 का गैप है। हाँ 64 का गैप है। फिर कितने का गैप है, 96 का गैप है, 64 96। ठीक है 96, तो कितने का गैप है, 32 का गैप है। आओ जरा एक बारी, फिर कितने का गैप है, 14, 114, 128 का गैप है। तो चौ 28 और चार 32, 32 का ही गैप चल रहा है सब में। तो 32 का और गैप ले तो 160 होना चाहिए, तो 474 होना चाहिए, यही गलत है। ठीक है, 32 32 80, डबल प्लस आठ, डबल, अच्छा, ढाई गुना प्लस ढाई गुना, 36 32 32 16, तो कितना हो गया, अच्छा ढाई गुना है ये तो सब, ढाई गुना, तो ये 500 होना चाहिए ना। 500 दो थोड़ी होगा, ढाई गुना है। ठीक है, दो, दो के बाद छ, दो छ, फिर क्या है, 6 इंटू 3 18 होना चाहिए इस हिसाब से। 6 और 6 12 है ये। फिर कितना है, फिर है, एक सेकंड रुक जाओ, चार का गैप, छः का गैप, तो आठ का गैप, 20 का हो सकता है, हाँ 20 का गैप, तो 10 का गैप होएगा, फिर 30 का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो 124 गलत है। 216, 261, ओके। ठीक है 216, तो 44 ऐड करेंगे, 44 45 ऐड हो रहा है। फिर उसके बाद कितना ऐड हो रहा है, 39 49 ऐड हो रहा है। फिर उसके बाद कितना हो रहा है, 47 हो रहा है। ये खराब हो गया ना ये वहाँ पे थोड़ा सा, तो ये कितना, 43 और आठ, 43 और आठ कितना हो रहा है, तो 46 होगा क्या शायद यहाँ, नहीं पता नहीं। 47 अगर यहाँ हो जाए, अगर यहाँ 49 की जगह 47 होएगा, तो यहाँ 49 हो जाएगा, हाँ तो 47 होना चाहिए यहाँ मेरे हिसाब से। तो ये 307 होना चाहिए, 307 के बाद 307 नहीं, 308 होना चाहिए, 47, तो 49 हो जाएगा और 51 हो जाएगा ये, हाँ
51 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होएगा 310 गलत है, 308 होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार हाँ ये देख लेते हैं अप्रोक्सीमेशन। यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो 110 इंटू 16, 110 इंटू 16 इक्वल टू एक्स माइनस 300 इंटू 10। ठीक है, तो 300 इंटू 10, ठीक है, तो 3000। तो प्लस कर देंगे 3000, तो 1600, 16,000 और 1600 और 16 इंटू 10 160। ठीक है, तो 671, तो 3000, तो 4760 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, 480/8, तो ये 60 हो गया। 60 माइनस 5 इंटू 4 20, तो 40 प्लस 16 56 आ जाएगा। ये क्या है, 12 माइनस, आ जाओ, 12 माइनस 4/2। ठीक है, तो 12 10 हो जाएगा। 10 कितना है, 100 का। ज़्यादा इजी आ रही है अप्रोक्सीमेशन, तो चलो कोई बात नहीं, बढ़ाते हैं स्पीड। 16 4, तो 4 4 12, एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 64% ऑफ 50। तो 50% ऑफ 64 भी लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज चेंज हो जाती है। 32 माइनस 23, तो 2 और 7 9 इधर आ जाएगा। तो 9 कैसे आएगा भाई, तो 21। तो ये क्या है, एक्स माइनस 16% ऑफ 25, तो 25% ऑफ 16 4 लिख सकते हैं। एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 16 इंटू 2, मतलब 128 माइनस 19। तो 18 घटा देंगे तो 110, 109 आ जाएगा, तो 113 आएगा। ये क्या है, 36, 36 प्लस 35 प्लस 34 इंटू 48 इक्वल टू एक्स माइनस 238। ये है। तो ये कितना हो गया, 35 71 प्लस 34 इंटू 48, तो 34 इंटू 50 कर लेते हैं। 34 इंटू 5 कितना होता है, 170, तो 1700 हो गया। और 68 घटा देंगे, 70 घटाएंगे, 1632 आ जाएगा। ठीक है, तो 1632, 71 कर देंगे 3, 1703, और 238 ऐड कर देंगे, तो 4 9 1941। ठीक है, ये क्या है, 9x, 9x माइनस 13 इंटू 9, 13 इंटू 9 117 हो जाए, नहीं कुछ और होएगा। 13 इंटू 260 होता है, में से 13 गया, 247 होएगा। ठीक है, 247 इज इक्वल टू 500 रूट ऑफ 530। एक सेकेंड को, 530 मतलब 576 होता है। और किस पे होता है, 529 भी होता है ना शायद, एक बार देखने दो। 25, 625, 23 का होगा फिर तो ये, 23 का होएगा, 23 ठीक है। तो 230 आ जाएगा इधर, है ना, यही है। ठीक है, तो 230 और 247, 7 और 7 और 4, 9 से काटेंगे भाई, किस पे आएगा, 5 पे आएगा, और 3 पे, 53 आ जाएगा आंसर। ये क्या है, 70% ऑफ 800। ठीक है, तो एक लेते हैं 70% ऑफ 800, जो 70 इंटू 8 हो जाएगा। 70 इंटू 8, तो 7 8 56, 560 प्लस 600% ऑफ 20, तो 20% ऑफ 600 हो सकता है, 120 हो जाएगा। 120 इक्वल टू एक्स, 2x, यही होएगा। 2x, तो ये कितना हो जाएगा, 680/2, तो डिवाइड मार देंगे तो 340 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 1024, तो ये 32 का स्क्वायर है। 32 माइनस 4x इज इक्वल प्लस 120 इंटू 4, तो 120 इंटू 4, 12 चौके 48 टू 0। ठीक है, तो ये क्या आएगा भाई, ये माइनस का है, तो 400, 512 माइनस 4x, तो 512/4 करना है, तो 512 किससे जाएगा, 1 से, 21 5 से, और 3 से, 153 आएगा। एक सेकेंड, ये क्या हुआ, 32 माइनस
4x प्लस 120 इंटू 4, 480, 512 इक्वल टू 4x ही तो आ रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे एक पे, अच्छा एक ही बचा ना, 2 पे 8 पे 128 आएगा। ठीक है, और देखते हैं ये है, अच्छा ये है, कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल इज 120, पेन एंड पेंसिल, इफ कॉस्ट ऑफ पेन इज 100 मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, एंड जी इतना इजी क्यों पूछ रहे हो? द कॉस्ट ऑफ पेन एंड अ पेंसिल इज 120, दोनों का है मिला के ना, द कॉस्ट ऑफ पेन इज 100 मोर देन कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेन 100 मोर देन पेंसिल, cost of pen is 100 more, pencil cost of pen, तो एक की तो 10 है, एक की 110 है, पेन की नोट द अबव, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 100, 120, 150, टेंस विच ऑब्टेन द मार्क्स विच इज 70%, ठीक है तो इजी है, 70%, तो 70%, तो 70 और 60%, 12 छिक्के 72, और 8%, तो 8%, तो 120, तो 142, 262, ठीक है यही देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ ब्रेकअप्स, टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड 2500, पर रुक जा, फॉलोइंग परसेंट नंबर आई सोल्ड टू डिफरेंट शॉप्स इन अ डे, ठीक है तो हो गया, फ्रॉम डी इफ 25% बन, फ्रॉम शॉप डी, ठीक है डी क्या है, येलो, 20%, इफ 25% वनीला, 25% वनीला आइसक्रीम सोल्ड, 43% स्ट्रॉबेरी, रिमेनिंग आइसक्रीम वर सोल्ड चॉकलेट, देन हाउ मेनी चॉकलेट आइसक्रीम वर सोल्ड, 25%, ठीक है तो 25 और 43 कितना हो गया, 60 और 68, तो बचा कितना, 32% हो गया ना, तो 32% ऑफ, तो 6.4% हो गया, 20%, 6.4%, तो 6.4, तो 25 हो गया, 25 इंटू 6 कितना होएगा, 150, और 0.4, तो 2.5, 1% होएगा, 0.1%, तो 10 और 160 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या, व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड फ्रॉम ए एंड सी, एब्सोल्यूट डिफरेंस between A and C, what is the absolute difference number of items sold by A and C, C का 17 है, A का कितना है, 29 है, तो 12% का डिफरेंस है, तो 12% कितना होएगा, 250, 300, नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड फ्रॉम बी, बी कितना है भाई, बी है ऑरेंज 18%, और व्हाट परसेंट मोर और लेस, ई, ई क्या है भाई, 16%, तो भाई आइसक्रीम सोल्ड बाय बी, और व्हाट परसेंट मोर और लेस, बी कितना है 18%, ठीक तो 16, तो 2/16 आ रहा है, तो भाई 1/8, 12.5, if the average of number of ice cream sold from D and F together is 430, ठीक है तो D and F, तो D 20% है, तो 500, 430 मतलब 860, तो 360 होंगी F की, B and F, then what is the respective ratio of ice cream sold by B and F, तो B की कितनी है भाई, B की 18% है, 18% कितना हो गया भाई, 500, 500 हो गया 20%, और 450, और 360, 45/36, तो भाई 9 से काटेंगे 5 पे और 4 पे, 5:4,
इफ द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड फ्रॉम ए एन जी आर इन रेशो 25:22। अच्छा भाई, देन व्हाट इज द, ठीक है। ए एन जी, ए एन कहाँ है, ए है, एक सेकेंड, ए 29% है, 29% है, तो 30% कितना होता है, 750, और 725 हो गया, तो 25 से डायरेक्ट ही कर लो ना, 29, ये 29 है, 22 × 29, और वो है 25 × 29। अब बता दो भाई, व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन, एक सेकेंड, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आइटम्स सॉल्व बाय ई एन जी, ई एन जी, ई एन जी पूछ रहे हैं, तो ई कितना है, 29/25, ई है 16/25। अच्छा 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 अच्छा, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना ही पड़ेगा, 22 × 3 66, 660 हो जाता है, और 22 घटा देंगे, और तो 20 घटाएंगे 640, 638 ही हो जाएगा, 25 × 16, 160, 100, 320 और 80, 400, 238 का डिफरेंस है। और क्या है भाई क्वेश्चन, वेसल कंटेन्स मिल्क वाटर इन रेशो 5:4, आओ जरा, 5:4 इफ 18 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड, 5:4 वाटर, 18 लीटर ऑफ मिक्सचर इज 18, तो 210 लीटर इसमें से जाएगा, और 8 लीटर इसमें से जाएगा, एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, ठीक है, तो +18 हो जाएगा, ठीक है। द रेशो बिकम्स 7, अच्छा 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 अच्छा, 5x - 10, 4x - 8, +18, तो ये कर लो 4x + 10, 4x + 10, ठीक है, 5:7, देन फाइंड इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, तो 7, 35x - 70, 20x + 50, तो 15x इधर हो जाएगा, और 120 इधर हो जाएगा, तो x 8 आ जाएगा, तो 8, तो बताओ क्या बताना है, इनिशियल वॉल्यूम 9 × 8, 72, एक बार रुक जाओ जरा, फाइंड द नंबर ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर शेप एंड बी, रुक जाओ, ए स्टार्ट द बिजनेस 3200, बी जॉइंस आफ्टर 6 months विद ए 6A, ठीक है, तो उसका 3200 है, 3200 × 12, आफ्टर 1 year द रेशो ऑफ द प्रॉफिट इज 8:5, ठीक है, फाइंड द वैल्यू, तो 8 ये है, तो 32 × 12, तो बाद 320 और 64, तो 4, 8, 3, 8, 4, 0, 0, ये 8 हिस्से है, 8 से डिवाइड मारो इसे, यहाँ पे डायरेक्ट ही मार लो, 4, तो 4, 4, 12, 480, ये एक हिस्सा है, तो × 5, तो 2400 हो गया, 400 आएगी वैल्यू, 4000। रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट टू कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years इज 25:26, अच्छा, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोथ सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट इज 25:26 कह रहे हैं 2 साल पे, ओके, तो कहने का मतलब ये है भाई 12.5, अगर 12.5 लगा लो, तो 20 × 20 40 हो जाएगा, और 20 × 20 44 हो जाएगा, 400, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोथ 10 × 10, 20%, और वो किस परसेंट हो जाएगा, 20 होएगा, और 44 होएगा, फिर भी कैसे ही होएगा ये, 8 होएगा क्या, 8 देखियो, 8,
16 हो जाएगा। 5 × 5 25 का 10% हो जाएगा। 5 × 5 कितना हो जाएगा? 5% ही होएगा फिर तो। 5 × 5 10, 5 और 5 × 5 25, 0.25। तो ये होएगा 10.25। 5 होएगा क्या? 12, एक सेकंड, 12 × 24। अरे ये गलत होएगा, मेरा लग रहा है ये वाली गलत कर दी मैंने। कोई बात नहीं, रेशो ऑफ रमन 3:4। अरे कैलकुलेट कर लेनी चाहिए डिफरेंस बिटवीन। कोई बात नहीं, आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन। मैथ्स में गड़बड़ कर दी थोड़ी, कैलकुलेट कर लेता मैं अरिथमेटिक की जगह। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू, अरे हटाओ यार इसे। ये क्या है? फैमिली 10 डिफरेंट रो, ठीक है। 10 पीपल्स डू डिफरेंट रो, ठीक है। 10 two people are sitting in two people are seated in row 1 were facing north while sitting were facing south. Each person, बहन जी, the people seated in row, ठीक है, row 1 are facing 1 and 2. So each person 1 is sitting opposite to, ठीक है ठीक है। G is seated in row 1, G is seated in row 1 and sitting opposite to the person who is seated third to the left of R, ठीक है। तो R अगर यहाँ ले ले तो एक सेकंड, G and sitting third, who is seated third to the left of R, तो यहाँ आ जाएगा G, ठीक है। D is seated second to the left of G, ठीक है। तो हाँ, अच्छा 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 अच्छा, उल्टा कर दिया मैंने, रुक जा। तो G यहाँ डाल दो और R, R यहाँ डाल दो, ठीक है, ऐसे डाल दो। ईच पर, ठीक है। ठीक है, ईच पर्सन इन रो, ठीक है ठीक है। जी सिटेड इन रो 1, सिटेड अपोजिट पर्सन सिटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है। डी सिटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है। डी सिटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। एन इज सिटेड इन रो 2 एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है। टी अगर यहाँ है तो एन यहाँ है, ठीक है ठीक है। नाइदर एन नॉर टी सिट्स अपोजिट टू जी, तो इसके हिसाब से तो फिर टी एन यहीं आएगा, ठीक है। नाइदर एन, ए is seated immediate right of E, A is seated immediate right of E, ठीक है। A is seated immediate right of E. P is seated to the left of U, P is seated to the left of U, P is seated to the left of U. K and P are in different rows, K and P are in different rows, अच्छा। तो ये बोल रहे हैं कि A is seated immediate right of E, A is seated यहाँ अगर ऐसे बना दें, चल बना दिया, फिर K and P are in different row, और ये लिखा है P is seated immediate, P is seated to the left of U, टू द लेफ्ट, तो U इधर डाल दो, P इधर डाल दो, K इधर डाल दो, हो गया। हाँ ना, हो गया ना। Who among the following is seated adjacent to R, U and T? Who among the following sit opposite to D, D के opposite T? What are the, ठीक है, G U K, K ही होगा, G U P ही होगा ना, तो K होगा। E is seated third to the left of K, ठीक है। P is seated opposite to G, ठीक है। N is seated opposite to K, all। Number was seated to the left of N, left of N, ठीक है। 1 is same as the number seated to the right of K.
हाउ मेनी पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन, ये ठीक है, ए एंड स्टैंडिंग फॉर्म क्लोज सर्कल, ऑल आर फेसिंग सेंटर, 10 प्लेयर्स ना, इट्स नेबरिंग पर्सन, ठीक है, ठीक है, 10% on sending. C is standing second to the right of G, who is putting his left hand on the shoulder of A. C is standing to C is standing, G को इधर रखते हैं, C is standing, C is standing second to the right of G. C is standing second to the right of G, who is put G who shoulder A, ठीक है, तो A इधर आ जाएगा. B and D put their right and left hands respectively. B and D put their right and left hand on the shoulders of F. एक सेकेंड, बी एफ डी, ए होगा ना, बी एंड एफ राइट एंड लेफ्ट हैंड कोई ऑन द शोल्डर्स ऑफ एफ, तो बी एफ डी आएगा, ठीक है. ओनली वन पर्सन इज स्टैंडिंग बिटवीन डी एंड एच, ओनली वन पर्सन इज स्टैंडिंग बिटवीन डी एंड एच, ठीक है, तो डी एंड एच ऐसे होएगा. ओनली वन पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन ई एंड आई, ई एंड आई, whereas more than standing between E and J, E and I. Only 2% are standing between E and I. More than 1% standing between E and, ठीक है, E and J, more than one. पहले तो यही डालना पड़ेगा भाई, जैसे बी एफ डी ऐसे डाल दिया तो एच इधर आ जाएगा. अब ई और जे, तो ए, तो फिर हो गया ये बी एफ डी और एच, और ई और आई के बीच 2 का गैप है, तो ई और आई गिर ले, और ई और जे, ये लिखा हुआ है कि मोर देन 1% सेंटीमीटर ई एंड जे, तो आई इधर डाल लो, आई एंड ई एंड जे, ये ले, हो गया. थ्रेड मेथड से किया है मैंने गाइस ये. रुक जाओ, ओनली 2% आर स्टैंडिंग बिटवीन ई एंड आई, मोर देन, हो गया मेरा. हाउ मेनी पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन ई एंड जे, ओके, हाउ मेनी स्टैंडिंग बिटवीन ई एंड जे, 4. When counted from left of J, 4. Who is standing third to the right of E, F? Who is standing immediate left of J, D? Who is standing diagonally opposite to I, G? Diagonally opposite आ रहा है भाई साहब, diagonal आ रहा है. Diagonally opposite तो एक सेकंड, diagonally straight front होएगा कि ये क्या होएगा यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो diagonally opposite क्या होएगा, H I A G E C B, कितने हैं ये, 10 है क्या, अरे चलिए ये वाला छोड़ दे भी. डायगनली, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एच एंड सी, 1 2 3 4. व्हेन काउंट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 ही आएगा, 4 ही आएगा, 4. ठीक है, ये क्या, 7 डिफरेंट डेजिग्नेशन are in increasing order, that is in increasing order are assistant editor, manager is senior most, ठीक है, तो असिस्टेंट एडिटर और एडिटर और मैनेजिंग एडिटर और फिर डिज़ाइन असिस्टेंट, डिज़ाइनर, हेड ऑफ डिज़ाइन और मैनेजर.
एक दो तीन चार पाँच छः सात, आ जाओ। चारू इज इमीडिएट सीनियर टू अनिल। चारू इज इमीडिएट सीनियर टू अनिल। चारू इज इमीडिएट सीनियर टू अनिल बट जूनियर टू दिलीप, और दिलीप से जूनियर है। ठीक है, ओनली 3% आर सीनियर टू दिलीप। ठीक है, तो दिलीप, तो चारू अनिल और दिलीप, चारू अनिल। ठीक है, ओनली 3% सीनियर, नाइदर जीमा नॉट जितिन इज द सीनियर मोस्ट। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू आदिल। आदिल है कि अनिल है? अच्छा आदिल ही है बट जूनियर, तो आदिल है ये, आदिल। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू आदिल सेम एज द नंबर ऑफ सीनियर टू जितिन। जितेन। ठीक है, तो जितेन यहाँ नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा, तो जितेन यही होएगा फिर, जितेन। ठीक है, ईशान इज जूनियर टू गीमा। ओके, तो गीमा यहाँ नहीं आ सकता, तो गीमा यहीं आएगा, ईशान यहाँ आएगा। द फॉलोइंग इज सीनियर मोस्ट, तो हेतल हो जाएगा, हेतल। वो डेजिग्नेशन ऑफ गीमा, गीमा का डेजिग्नेशन डिजाइनर। और how many percent junior to ईशान? नो वन। और दिल इज इमीडिएट सीनियर टू ईशान। ये क्या है, y को w के जाना है। ठीक है, तो y w तक पहुंच गया, बड़ा भी है y। ठीक है, r को z के जाना है, r को, एक सेकंड, r को z के जाना है, तो r पहुंच गया दोनों। l, y को l के जाना है। ठीक है, तो y को l के जाना है, तो y में पट्टी लगी है, तो I इधर हो जाएगा। ये क्या है, इसको हटाओ, ये आ जाओ, कोड फॉर नाइट। नाइट का कोड क्या है? नाइट किधर है भाई? जी, नाइट तो दिख ही नहीं रहा। अच्छा ये रहा नाइट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का कोड है, ब्यूटीफुल इज JL। ठीक है, दा का कोड क्या है? दा है कहीं कॉमन? स्टारी कहीं कॉमन? स्टारी कॉमन है, स्टारी। स्टारी का कोड है SF। दा, दा, दा कहीं नहीं है, तो दा और नाइट में कंफर्म नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। व्हाट इज द कोड फॉर JL? JL का ब्यूटीफुल है। कोड फॉर लाइट, लाइट का कोड इधर, लाइट। स्टारी हो गया, लैंड इधर हो गया, रेड इधर हो गया। ठीक है, तो रेड देख लेते हैं, रेड इज टू, रेड इज टू। ठीक है, स्टारी इज SF, टू SF। BZ, RP इधर है, तो BZ होएगा लाइट का। एक सेकेंड, बी, RP इसमें कॉमन है, RP इज लैंड। रेड तो इन दोनों में कॉमन है डायरेक्ट। अच्छा नहीं, रेड तो हो गया ना, रेड तो टू हो गया, तो RP इसमें कौन, तो BZ हो गया लाइट। माँ, MA किधर है भाई? इधर है। ठीक है, तो रेड का हो गया टू चला गया, JL ब्यूटीफुल हो गया, Z इज Z और आइदर A और B। रेड का तो नहीं हो सकता, फ्लावर ही होगा फिर। एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ, फ्लावर इसमें कॉमन है। अच्छा, फ्लावर इज जी नहीं हो सकता, तू नहीं हो सकता, जेल नहीं होता, माँ होएगा। माँ का क्या बचा भाई? माँ ब्यूटीफुल फ्लावर रेड इज होएगा। ये क्या, 8 बॉक्स प्लेस्ड, ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ये क्या है क्वेश्चन। 8 बॉक्स प्लेस्ड वन अबव द अनदर। ठीक है, ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स 3 and 2। 3 and 2 के बीच एक है। ठीक है, तो 2 and 3 ऐसे भी हो सकता है। 2 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स 3 and 4। ठीक है, तो ये भी हो सकता है।
अरे ये तो ज़्यादा बढ़ जाएगा यार मामला। बॉक्स 4 इज प्लेस्ड अबव 3, हाँ ये सही है। क्या लिखा है, 2 ऑल्सो प्लेस्ड, ठीक है, अब सही है। There are 3 boxes placed in between 2 and 7. 7 यहाँ भी हो सकता है। इसमें लिखा आ रहा है कि 3 boxes placed between 2 and 7, 1 2 3, ठीक है। Box 5 is placed immediately above 8, above 8, 5 and 8 are placed below 6 but not immediately below, ठीक है। 1 is placed above 3, 6 is placed immediately above 2, तो ये क्या है, ये तो गलत हो गया ना। 2 boxes are placed in between 3 and 4, तो ये गलत हो गया। एंड 4 इज प्लेस, तो यही हो जाएगा 4 1 2 3 6 2। पहले तो ये कर लो फिक्स, यही हो गया फिक्स, देख लेते हैं एक बारी। 2 boxes are placed in between 3 and 4, 4 there are 3 boxes placed in between 2 and 7, देख लेंगे वो भी। 2 and 7 के बीच 3 है। 5 is placed immediately above 8, तो 3 और 1 2 3, तो 7 यहीं आएगा फिर। 5 is placed immediately above 8, 5 is immediately above 8, 5 and 8 are placed below 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 5 and 8 ये लो। 6 is placed immediately above 2, हो गया ये। 1 is placed above 3, are placed below 6 and 5 is placed, ठीक है। तो how many boxes are there in 1 2 3 4 5 6 7 8, how many boxes are there in between 6 and 7? 2, ठीक है। how which of the below is immediately above 1? 7, which of the following is bottommost position? 8, box is placed exactly in between 2 and 8? 5, ये क्या है? which of the following replace the mark in order to make the expression a definitely true? f को जाना है c तक, इज इक्वल टू होएगा, इज इक्वल टू ही हो सकता है इसमें तो बस। ये क्या है? which of the following should replace definitely true? well definitely true था ना फर्स्ट में, ठीक है। t को जाना है q तक, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा, टी को जाना है q तक बड़ा करना है, तो ये करना पड़ेगा। पर आ जाते हैं, अब देख लेते हैं, ये हटाओ, ये नहीं। क्लोज सर्कल विच डायगोनल अपोजिट टू आई, ये क्या है? ये है ब्लड रिलेशन है, अच्छा। ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, यही कर लेते हैं। if all the numbers are arranged in descending order, ठीक है, बड़े से छोटा, then the sum of even digits of second number and odd digits of fourth number is, ठीक है। तो फॉल द नंबर्स डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा, तो 817 और 643 और 594 और 578, यही होएगा। तो पहला, देन सम ऑफ इवन डिजिट्स ऑफ सेकंड नंबर, इवन डिजिट्स, इवन डिजिट्स, तो इवन डिजिट्स एक सेकंड, प्लेस वैल्यू की 4 और 6 इवन डिजिट सेकंड नंबर, तो 10। odd digits of fourth number, odd digits of fourth number, तो 12, तो 22 हो जाएगा। if all the digits of all the numbers are decreased by 1, then sum of even digits of all the numbers, sum of even digits of all the numbers is by 1, ठीक है। decrease by 1 है,
तो 2 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 हो गया, 4 हो गया, 8 8 16, 24 24 30 30 और 40 42 हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड डिजिट्स ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स एंड sum of even digits of last three number? What is the difference between sum of odd digits? Sum of odd digits तो ये हो जाएगा 3 और 12 15, सॉरी 12 15 15 और 9 24। odd digits of first three number, ठीक है, तो 8 4 और 6 18। ओके गाइस, तो लेट्स गो, हो गया है 74.75 आए हैं। लेट्स सी कितना परसेंटाइल है। आई थिंक ठीक ही रहा। ओके लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। 96.5 परसेंटाइल, 96.5 परसेंटाइल आ गया गाइस, मजा आ गया है। ओलिव बोर्ड का लेवल अच्छा था। एक क्वेश्चन गलत कर दिया हमने रीजनिंग के अंदर, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन गलत किया है। मैथ्स में भी एक क्वेश्चन गलत किया है, तो ये थोड़ा वो इंग्लिश का देखो, परसेंटाइल देखो इंग्लिश में 99.9 परसेंटाइल। दैट्स अमेजिंग गाइस, 99.9 परसेंटाइल, बहुत सही रहा इंग्लिश। तो ये 99 पॉइंट, ब्लैक ले लेता हूँ, 99.9, ये अच्छा लगा मेरे को देख के। तो रीजनिंग और करना चाहिए था, ठीक है, तो रीजनिंग और कर सकते थे, बट नॉट बैड। आई थिंक गलत भी हो गया तो उससे भी परसेंटाइल कम हो गया। देखते हैं कौन सा गलत है इसके अंदर। एक सेकंड, ये कैसे जाएगा, हाँ, तो देख लेते हैं पहले। तो चौ 34th गलत हुआ, ये कैसे हो जाएगा, एक सेकंड देख लेते हैं। इज इक्वल टू, अच्छा एक सेकंड, इज इक्वल टू डाल दें तो, अच्छा एफ, अच्छा पट, ठीक है ठीक है, तो एफ का, हाँ ठीक है ठीक है, नॉट पॉसिबल ही आएगा क्योंकि एफ इज इक्वल, ये हो जाएगा ना, एफ इज इक्वल टू और सी हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू नहीं चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये वाला एक गलत हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार। 27 करे थे वैसे, एक यहाँ पे गलत हो गया, कोई बात नहीं, और इसमें गलत हो गया, हाँ ये लगा था मेरे को, 8% है ना ये करना चाहिए था, ठीक से करना चाहिए था। मैथ्स भी करनी पड़ेगी इम्प्रूव, मैथ्स ठीक है पर कोई नहीं, ठीक लेवल था, ठीक था। टीबी का तो काफी आई थिंक थोड़ा इजी आता है। ये कैन सोनर आई गॉट इनटू द हाउस, ओके, तो इसमें क्या है, नो सूनर हैड आई, अच्छा हाँ हाँ, हैड आता है ना, नो सूनर हैड, हाँ ये रूल पढ़ा था, हैड आता है आगे, नो सूनर के आगे हैड आता है। व्हेनेवर एडवर्ब्स लाइक नो सूनर, हार्डली, स्carcely आर यूज्ड इन द विंग, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद डायरेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये रूल था, मैं भूल गया था, कोई बात नहीं। ये वाला रूल था भाई, एडवर्ब जब यूज होते हैं तो उसके आगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। फिर भी 99.9 परसेंटाइल भाई, मेरा फर्स्ट टाइम आया है 99.9 इंग्लिश के अंदर। ये क्या है, अच्छा ये किधर लिखी हुई है लाइन, मेरे को लगा कंबाइंड करने हैं। द लास्ट लास्ट स्टेट द कॉम्बिनेशन ऑफ पेन डाउन डिमांड, अच्छा एक सेकंड, तो ये बोथ, ये शिफ्टिंग डिजायर्स टू इंक्रीज सेल्स थ्रू बोथ, ये ऑन एंड ऑफ दोनों नहीं है, अच्छा चलो, एक सेकंड, मतलब दोनों ही, तो मैंने यही तो करा है कि दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन करना पड़ेगा दोनों को। अच्छा ऑनलाइन अलग से नहीं है ना,
स्टोर, चलो ठीक है जो भी है। हाँ इफेक्ट है इसका, अपशॉट। ठीक है, अपशॉट मीन्स इफेक्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, इफेक्ट होता है इसका मीनिंग, तो ठीक है। गला भी सूख गया थोड़ा मेरा। तो भाई कैसा लगा बताना भाई, 96.5 परसेंटाइल आया है अपना, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। काफी ठीक आ गया, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, माइक्रोसॉफ्ट खुल गया। तो 96.5 आया है भाई, बहुत सही है। और इंक्रीज करेंगे, 80 प्लस का टारगेट तो है इस बार मेरा, क्योंकि 73 मेरे पिछली बार ही आ गए थे। इस बार देखते हैं कितना रहता है। 80 प्लस का टारगेट है हमारा ऑफिशियल एग्जाम में, 73 मेरे पिछली बार आए थे। तो आप बताना गाइस कैसा गया आपका ये वाला टेस्ट। ये है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स टू, टू है ये, ठीक है। और इसमें मेरा 96.5 परसेंटाइल आया। और आप सब भी बताना कि आपका ये कैसा रहा टेस्ट, कितने मार्क्स आए आपके इसके अंदर। रफ वर्क में लगा दूंगा रीजनिंग के अंदर, ठीक है, एक तो थ्रेड मेथड से ही किया था मैंने। और कैसा लगा आपको जो मेरा अप्रोच था और कैसे मैंने सॉल्व किया, आप बताना कैसा लगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और कैसा बताना कैसी चल रही है तैयारी, और अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करना कमेंट सेक्शन के अंदर। और आपकी शिफ्ट कौन सी है, मेरी है 21 की थर्ड शिफ्ट है, सॉरी फर्स्ट शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट है 21 की। तो लेट्स सी क्या होता है। ओके, बैटरी भी कम हो चुकी है। तो ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड योर फ्यूचर एंड अपकमिंग एग्जाम। टेक केयर।